Good afternoon, sir. Good afternoon. To win, you lead. If you lose, you can guide. I, Amir Pathan, on behalf of Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship, consider it a great honor to welcome our chief guest and keynote speaker, Mr. Zahid Akhtar, sir. I heartily welcome you, sir. I also welcome our faculty member and respect all dear Vivian friends. I welcome you all now. I would like to call upon Megha Patel to take. Good afternoon, sir. I, Megha Patel, here to give an introduction on Vivek College of Commerce and Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. Vivek Education Society is a chairman institution set up in the year 1961, had established Vivek Vidyalaya in 1962, had followed it up by starting junior college. Vivek College of Commerce has started in 1986. It is recognized as a vibrant institution working continuously for the cause of education. Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship was started on 11 December 2018. Vivek College of Commerce is first college in Maharashtra to inaugurate an incubation center under MITS, Maharashtra Information Technology Support Center. We have registered ourselves under Ministry of Education, Institution Innovation Council, and have also completed and approved all our quarter 1 and 2 activities. Under IIC, we also have Atal Tinkering Labs in which we do mapping in different schools. We had participated in NEC, National Entrepreneurship Challenge. We secured second position in basic track in 2022-23 and secured fifth position in advanced track. We were the only commerce college among 900 plus engineering colleges, and Google has recognized our podcast, selecting it for upload on their platform. Now we'll know more about the sir. Zahid Akhtar sir is a professional in the field of organizational development. He is the mentor of IIT Bhubaneswar, having 21 plus years of experience in building a strong culture of enterprise, organizational working in different fields. He also has a mental health company named One Life that deals in training awareness and counseling of people having mental health issues. Zahid sir is life coach, trainer, and mental health professional. He empowers professionals to cultivate passion at their work. Now I would like sir to take over. Thank you so much for the nice introduction. So I'm happy that so many people have reached today. And in fact, they have that sense of responsibility toward themselves, their families and the societies, right? Guys, very first thing that I would like to hear to say on entrepreneurship is basically there are a couple of expectations whenever we do anything in life. If you're coming for a session, so you must be aware of a couple of ground rules. Now this is, let's make it very formal thing. Now ground rules means, since you're devoting 1 hour of precious times, so you should be very knowledgeable about it, right? To take something very good from the panel, right? Number one. Secondly, if you think there is something that is good, you want to note it down, please take a time to note it down on a piece of paper, right? So keep your pens and notepads ready. Maybe I would be sharing a couple of good things. You may always try to, download it. You can write it down so that in the free time, you can also watch over it, right? Third expectation is basically, guys, there is nothing called as language that has to be, barrier in between. So आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ. So your communication, if you think that you should not be speaking in English, या आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता तो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, राइट? तो मकसद ये है कि आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, I can understand Hindi and English both well, no other language. So anybody has a question, so we'll take up question at the last of the session. 15 minute पहले हम लोग questions लेना start करेंगे close होने के पहले. And anybody has a question related to anything, you can communicate in both the languages. हिंदी में भी बात कर सकते हैं आप, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं. I'm sure that it is good with everybody. So victory sign. Yeah.
थैंक यू सो मच. सो दैट्स अ कॉमन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज हम कभी भी कुछ चीज सीखते हैं जिंदगी में, सो उसका लर्निंग हमको लेके जाना है. ये नहीं कि अब मैं एक साइड वन साइडेड कन्वर्सेशन हो, मैं आपको कुछ सुनाऊं और आप सिर्फ सुने और चले जाओ. राइट. मकसद है कि आज हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बात करेंगे, एंड हाउ स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. राइट. सो anybody has an idea what what is what was the age of person who started this company, Facebook? Anybody has an idea? कौन से साल में उसने फेसबुक स्टार्ट किया? Can anybody tell me? 19 years of age, right? So entrepreneurship, yes. So entrepreneurship start करने का कोई एज नहीं है. एक ऐसे भी 85 इयर्स के एज में किसी ने एक और कंपनी बनाई, केंटकी KFC, राइट? ऑलमोस्ट 80 इयर्स ऑफ एज. सो आप कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन एंड इंटरेस्ट. आप वो चीज करेंगे जिसका आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, अदरवाइज मत करिए. तो आज आप सीखने आए हैं तो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है. आपको किसी ने धक्का दे के अगर बुलाया है यहाँ पे, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यस. क्योंकि ये एक ऐसा पैनल है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल फॉर्मल रहेंगे. यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में. सो विल गिव टाइम फॉर दैट. सो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई उम्र नहीं होता. 19 में भी आपको ज्ञान आ सकता है. आपको ऐसा भी लग सकता है 50 साल की उम्र में कि मेरे को नया कुछ करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो राइट. देयर इज नथिंग लाइक देयर इज अ एज गैप, राइट? तो हम आज स्टूडेंट इनोवेशन को लेके बात कर रहे हैं, और जहाँ पे सबसे पहला हमारा बेसिकली दिमाग जाता है कि बेसिकली आप की स्टूडेंट जो है वो कौन सी उम्र में, मतलब हम क्यों करें? क्या हम कॉलेज खत्म करने के बाद में करें, राइट? या स्कूल खत्म करने के बाद में करें, या फिर 4-5 साल नौकरी करें उसके बाद करें? व्हाट इज द इंटेंट? व्हाई अ स्टूडेंट हैज टू डू अ स्टार्टअप, राइट? नाउ if you consider that fact, to have a control over your job and life, what you should be doing, whether you want to do a job, whether you want to be your own boss, right, or you to do a startup, आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. आपका लव होना बहुत जरूरी है उसमें, राइट? सो दैट आपको वो बोरिंग फीलिंग नहीं आना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स इज कैचिंग अप. अगर आपको लगता है कि आपको जॉब करना चाहिए तो प्लीज आप जॉब करिए. अगर आपको लगता है कि आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखना पड़ेगा. एवरीबॉडी इज राइट एट हर और हिज डिसीजंस इन लाइफ. आप रिस्पॉन्सिबल है. आप किसी और को ये नहीं बोलेंगे कि मेरी इस चीज के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो आपको अगर जॉब करना है, आपको जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए. आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो लेट मी टेल यू, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और लव और पैशन रहेगा तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, राइट? कोई आपको धक्का दे के ना नौकरी करा सकता है, ना धक्का दे के आपको एंटरप्रेन्योरशिप करवा सकता है, राइट? आप मोटिवेट हो जाएंगे. जितने भी अभी चल रहे हैं, ओला है, उबर है, अमेजन है, व्हाट एल्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स में काफी सारी साइट्स चल रहे हैं, काफी लोग हैं. नंबर आप शार्क टैंक देखते हैं, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट शार्क टैंक, राइट? आपको बड़ा इंटरेस्ट लगता है, बट आपने कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को भी जानना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, आपका अपना बिजनेस करना है, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, सो डोंट हैव दैट हैबिट ऑफ दैट समबडी वुड बी पुशिंग यू ऑनटू इट. आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ये हम हमेशा बोलते हैं, और उसका बोलने के पीछे मकसद भी यही है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के अंदर में पैशन नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके. सो उसमें फिर कोई फायदा नहीं है कामों को करके. एनीवेज, we'll go to the second point. So basically, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स का जब सवाल आता है, एक तो है कि आपका पैशन होना जरूरत है. हम किस तरह से स्टार्ट करें, राइट? इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस. हम डिफाइन पहले करते हैं कि लोगों को काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है. नाउ एवरीबॉडी सेज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दे contradict between businessman and a entrepreneur, right? So entrepreneurship क्या है और एक business क्या है? How is it different? Anybody has an idea how business is different in entrepreneurship? Anybody?
and I definitely like you to engage first. कोई है यहाँ पे? Guys, let's do one thing. आप हाथ दिखाओ और उसके बाद वीडियो करके आप एक वर्ड बोल सकते हो. There is nothing. I'm not pointing out anybody. Yeah. How is business different from entrepreneurship? Yeah, Uzma. Yeah, Uzma, tell me. Sir, business means which already exists, but entrepreneurship is something creative and innovative. Yes, I would say that you are partially correct, because business में एक ही मोटिव होता है, पैसे कमाना, profits कमाना, धंधा करना है, right? That is business. The motive is to make money. एक चीज को खरीदना है, उसको बेचना है, पैसे कमाने हैं. That is business, pure business. But entrepreneurship is basically, it's a combination of both. मकसद ये भी है कि आप पैसे कमाएं, मकसद ये भी है कि आप सोसाइटी को कुछ दें. You're helping a problem to be sorted out. आप एक solution दें सोसाइटी को, आप उसका एक वैल्यू एडिशंस दें. आप समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो दोनों का डिफरेंस ये है, बेसिक है कि एक आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरा चीज जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं. तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? एनीबडी? Entrepreneurship, sir. वेरी नाइस. लगता है जज्बा कुछ करके दिखाएंगे, अपना कंपनी बनाएंगे. यस और नो? सो बी प्लीज रिमेन विथ मी. राइट? Okay. Now, guys, if you remember, in college days, when we, you guys are basically into first year, second year. Which year you are basically? Second year, sir. Second year, +2 second year or +3 second year? All Sir, are in- everyone is there from first year also, from second year, from third year also. Very nice. Everybody is compassionate about becoming an entrepreneur, right? Not everybody. I would say that people have little bit of interest, or somebody has more interest, right? It's a combination of everybody, right? So definitely when we talk about jobs, the main thing is that when we talk about jobs, that how to get a job and what should we qualify, what should be the basic minimum requirements, right? लेकिन entrepreneurship is totally away from it. ये एक ऐसा डोमेन है कि आज की डेट में काफी कैचअप कर रहा है. पिछले कुछ सालों में entrepreneurship, it's almost everywhere in the sense that every colleges nowadays, they are into incubation, right? So we'll discuss, if I have an idea, how to take it forward. हम कैसे लेके जाएंगे, right? देखिए, मैं आप मेरी अगर स्टोरी सुनाऊं, so I started back in entrepreneurship because I am a professional trainer. So I have been training, I have been into corporates, I am into corporate training. But what I did was, like, after spending around 12-13 years in the corporate, I had this thing in my mind that I had to start something on my own. मेरे को अपने आप से कुछ start करना है. So what I did was, I came back to my hometown, which is called Odisha. Odisha में मैं hometown में आया, और my dad was in army and he was a war veteran, Operation Vijay Kargil के veteran है. So जब वो जॉब उनका जब खत्म हो गया, रिटायरमेंट, तो I shifted to Delhi and I did the corporate world. तो उस टाइम में हमारे पास में कुछ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होता था, कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे. तो जब हमने 2013 में बिजनेस स्टार्ट करना सीखा, तो वी आर द नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट? हमारे जनरेशन टू जनरेशन में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं था, तो हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया. अब मैंने रिस्क जो लिया, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी वैसे ही रिस्क लें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सेटल हो गई हैं, बहुत हो गई आप लोगों के लिए. जब हमने स्टार्ट किया, आप विश्वास नहीं करेंगे. Why I'm saying this, because this will encourage you कि why is wasting now, right? हमारी टाइम में जब हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, कोई सुनने वाला नहीं था. सबसे पहले थप्पड़ या गुस्सा आपके घर वालों से मिलता है, राइट? इतना अच्छा जॉब छोड़ने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप करना है, why you are doing this, you should not do this, right? Then सोसाइटी का एक और प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर होता है, अरे लड़का तो अच्छा जॉब कर रहा था, क्या करने का जरूरत है, अभी अपना धंधा करेगा, दिस इज नॉट गुड. आप लोग उसको समझाओ, उसका दिमाग खराब हो गया है, राइट? बट आई वांटेड टू डू एनीवेज.
हमने किया। उस टाइम में जानकारी ज्यादा नहीं थी। 2013-14 एंटरप्रेन्योरशिप वाज लाइक कैचिंग अप। स्टार्टअप्स एक कल्चर स्टार्ट हुआ था, राइट? जब कोई चीज स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? तो उस टाइम में हमको लीगल कुछ पता नहीं था कि कंपनी कैसा बनाना चाहिए, प्रोप्राइटरी बनाना चाहिए, प्राइवेट बनाना चाहिए, राइट? तो हमको ये सारी चीजें ऑप्शन पता नहीं था। हमको जिसने जो बोला हमने वैसा किया। तो इससे क्या हो जाता है? इससे ये होता है कि जब आप किसी कुछ नहीं जानते हैं या आपके पास सिचुएशन सही नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, आप गलत कदम भी ले सकते हैं। मेक सेंस? बट नाउ टुडे द थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हर कॉलेज में, हर स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है, राइट? एंड देयर हैव अ रीजन बेसिकली, because people have diversion. I would say that just like the way you have different also developed. Like हमारे टाइम में क्या होता था? आप कॉलेज से निकलो, आपको या इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है। आज हर एक डोमेन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग को पता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज हर एक डोमेन में करने का। किसी को ड्रोन टेक्नोलॉजी में करना है, किसी को इंटरनेट में काम करना है, किसी को साइबर सिक्योरिटी में काम करना है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। किसी को फैशन डिजाइनिंग करनी है। पर हमारे टाइम में इट इज इधर मेडिकल और टेक्निकल, जो भी आप इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट? वैसे ही पहले हमारे पास में बिजनेस को कोई रेकमेंड नहीं करता था, लेकिन आज एंटरप्रेन्योर्स बोलने से पीपल लाइक इट। वाओ, आपके बच्चे के अंदर में दम है, ही हैज अ प्रोडक्ट, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड ओवर द टाइम। आज आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, स्टार्ट स्टार्ट राइटिंग इट। क्या करना चाहते हो? आधे से ज्यादा ऐसे लोग भी मिलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कि जब वो पिच पे आते हैं, किसी से बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं कि whenever you have some idea in your mind, please write it down. उस आइडिया से आप बिजनेस कैसे बनाएंगे, उस आइडिया को लोगों को बोलेंगे कैसे, उस आइडिया को लोगों से मोटिवेट कैसे करेंगे, उस आइडिया को ऐसे कैसा आइडिया बनाएंगे कि आपके साइड वाला, आपकी मम्मी भी बोले या आपके पापा भी बोले, आपका फ्रेंड भी बोले, अरे इसको करके देख मैं, राइट? यानी आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वेरी गुड आइडियाज, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप। इंसान बोलता कब है? व्हेन डू यू स्पीक अप वेल? व्हेन यू हैव द नॉलेज, व्हेन यू हैव रिटन समथिंग। अभी मैं आपको बोलूंगा एक स्पीच दो अचानक आईओटी के ऊपर में, 80% लोग यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे, राइट? Yes. यस, एग्जैक्टली। पर मैं आपको बोलूंगा कल 12 बजे आप आईओटी के ऊपर में बोलेंगे, 80% आदमी बोल पाएंगे, राइट? क्यों? एग्जैक्टली। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपके दिमाग में आइडिया है, उस आइडिया को कौन खरीदेगा? हाउ इज इट हेल्पिंग द सोसाइटी? हाउ इज इट हेल्पिंग यू? हाउ इज हेल्पिंग द पर्सन whom इट इज मेंट फॉर? आपने सुना होगा ना, गंजे को लोग कंघी बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? अरे गंजा अपने लिए नहीं लेगा, अपने परिवार के लिए तो कंघी लेगा। यस और नो? यस और नो? अब मैं गंजा हूं, मेरे को आप बोल रहे हो कि सर कंघी ले लो, बहुत अच्छा कंघी है, ये ऑर्गेनिक कंघी है, इससे लकड़ी से बनता है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार मैं तो गंजा हूं, मेरे लिए क्या काम का है? तो आप बोलेगा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, आप चले जाओगे। पर वहां पे एक लड़का है जो आपको बोले सर कोई बात नहीं, आपके घर में जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं या कोई लोग हैं, ठीक है, उनका बाल स्ट्रांग रहेगा और थोड़ा, तो आप नेचुरल कंघी यूज करिए, आप उनके लिए ले सकते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पे? आपने गंजे को कंघी बेचा, राइट? So that is why it is important to understand very first thing, which is just write down your idea. How you are going to sell, what is the marketing strategy, whom you are going to sell, where you are getting the products from, manufacture करोगे या किसी से ला के बेचोगे। So you can choose between two. या तो आपका प्रोडक्ट है या तो आपका सर्विस है, यही दोनों चीज एग्जिस्ट करती है, राइट?
प्रोडक्ट वो होता है जो आप बनाते हो, जो फिजिकली है, टेंजिबल प्रोडक्ट है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है, राइट? आप किसी से उसको फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदते हो और उसको बेचते हो, राइट? इट इज अ प्रोडक्ट। और जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो या जिस जिस चीजों को आप सर्विस जो होते हैं नॉर्मली, वो सर्विसेज होते हैं। सो बेसिकली अगर आप अपने एजुकेशन सर्विस दे रहे हो, या आप किसी को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, या आप किसी को जिसमें प्रोडक्ट्स का कोई आजू बाजू कुछ नहीं है, ओला क्या है, सर्विस में है, राइट? उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। गाड़ी तो कस्टमर का प्रोडक्ट है, या फिर जो बंदे गाड़ी लगा रखे हैं उनका प्रोडक्ट है। सर्विस दे रहा है कि हम यहाँ से वहां तक का जो वो हम देंगे आपको, राइट? सो ऑल दिस सर्विस सेक्टर, आप किसी को अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हो, राइट? सर्विस में बहुत चीज आती है। आजकल एक सर्विस बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को पता होगा, स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। वो सर्विस होता है बेसिकली कि आप घर बैठे लोगों से अपना एसी रिपेयर करवा सकते हो। घर में बैठ के आपको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कॉल देम अप, दे विल कम। कोरोना के टाइम में आया था ना वो अर्बन लैडर या समथिंग, जो आपके घर में यस, आके, अर्बन ही है सर, अर्बन। या राइट। सो उसमें क्या है ना, वो कट आपके घर में आके बाल कट काट के जाता था। उस टाइम में लोग बोलते थे, अरे ये कौन सा हाई फाई बंदा है बाहर से आके काट रहा है, राइट? बट आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो गया। नाउ एवरी दिस द एग्जिस्टिंग बिजनेस, सलोन बिजनेस, अब उनके पास ये ऑप्शन है कि सर आप अगर नहीं आ पाएंगे तो हमारा बंदा आपका जाके कटिंग कर देगा, राइट? सो दिस इज वन थिंग, ईदर सर्विस और प्रोडक्ट. And let me tell you very frank, second very important thing to note. First is basically writing down what exactly you want to do, right? कैसे करोगे, कस्टमर कौन है, कैसे पैसे आएंगे, that is important. Number one, right? Writing everything, documenting it. Second is basically you have to be very sure of your products, how you are going to say it. आपको बोलना भी है, लोगों को समझ में भी आना चाहिए। आप प्रोडक्ट बना के, सर्विस बना के बेच बैठे हुए हो, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता। तो जो चीज आपने लिखा है उसको बोलने की हिम्मत रखो। दैट इज सेकेंड थिंग। नाउ तीसरा चीज होता है कि आपका उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। लीगल मतलब मैं इसको क्या कंपनी बनाऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा या प्रोप्राइटरी बना के उसको। अब देखिए जो नया नया बंदा है उसको प्राइवेट प्रोप्राइटरी कुछ समझ में नहीं आता है, ये सर नो, पर वो फंस जाता है। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइवेट कंपनी बना के फंस गए, क्योंकि कंप्लायंस है, गवर्नमेंट के टैक्स है, सब कुछ है, और वो सबकी भरना पड़ेगा, आपका धंधा हो या ना हो। तो इट्स बेटर यू गो फॉर अ प्रोप्राइटरीशिप। पहले आप देखो, पब्लिक में डालो, लोगों को पसंद आती है, फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। सो दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री इज बेसिकली मेकिंग अ काइंड ऑफ अ स्प्रेडशीट और प्रॉब्ली अ प्रेजेंटेशन शीट। अब आप बोलोगे कि सर हम प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे बेसिकली। सो प्रेजेंटेशन में बेसिकली तीन चार चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन में बेसिकली होता है आप कौन हो, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, राइट? आप सोसाइटी के, आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट? सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से कैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं, राइट? देन आपके प्रोडक्ट का कंप्लीट आप वो बता देते हो कि द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ इज इट हेल्पिंग द सोसाइटी, राइट? और हाउ इज इट हेल्पिंग द entrepreneurship, whatever. Then there's a slide call कि अब यहां हो गया कि हम ऐसे ऐसे से मदद करेंगे। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप कैसे बिजनेस लेके आओगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, कौन कौन कस्टमर्स हैं आपके, पहले साल में कितने कस्टमर आएंगे, अगर एक टेंटेटिव फिगर बनाना होता है। तो ऑल दिस थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट योर प्रोडक्ट एंड योर प्रेजेंटेशन। मेक सेंस? आज हम ज्यादा ज्ञान नहीं करेंगे। Why I'm saying this, because you need to understand why students, by being a student you can be best in this, right? क्योंकि जो लोग कॉलेज के बाद कई सालों के बाद सोचते हैं, आप अभी से सोच रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बट सोच को हम अगर हम आगे लेके जाना है तो हमको दो तीन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो राइटिंग डाउन,
what exactly you're trying to do and how it's helping the society and how you're going to market it, right? Secondly, देखिए जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, this is mentorship. हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं क्या क्या करना चाहिए, राइट? तो वैसे ही जैसे आपका entrepreneurship shell है, they have a business. They wanted to make sure that if they have an entrepreneurship shell, the potential entrepreneurs जो startups आप बनाना चाहते हैं उनको हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प करेंगे, आपका मेंटरिंग कराएंगे, आपका बिजनेस प्रपोजल्स बनाएंगे, आप लोग को जो भी सपोर्ट होगा हम अपने तरफ से देंगे. सो योर एंटरप्रेन्योरशिप सेल इज ट्राइंग टू हेल्प यू. वो आपसे भाग नहीं रहे हैं कि आप स्टार्टअप बनाओ, आओ हम एक छोटा सा कंपनी बना देंगे, आपको उस जगह में बैठ के आप आराम से अपना स्टार्टअप देखो. नो, दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ हैंड होल्डिंग. वो आपकी मदद ऐसे कर रहे हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर से मिला रहे हैं. नाउ मेंटर्स होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, आपके बिजनेस में. आप किसे कहते हैं? एनीबडी हैज एन आइडिया गाइस? एनीबडी? मेंटर्स किसे बोलते हैं? Who guides जो you आपको हेल्प, हु गाइड्स यू, on the आपको right हेल्प करे path? कहीं यहाँ पे ऑन द राइट पाथ, आपको तरीका बताए. जो आपको, जैसे मैं से आप सुन रहे हैं तो मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो कैसे आप आगे लेके जाएंगे, राइट? बिजनेस में सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, आप किस तरह से फंडिंग ला सकते हैं, उसमें पैसा कैसे आएगा, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा बनना चाहिए, आप किस तरह से उससे बात करेंगे, लोगों के सवाल का जवाब किस तरह से देना है, ये सब चीजों के लिए मेंटर्स आपकी हेल्प करते हैं. लीगल को कैसे देखना है ना? सो इन चीजों के लिए मेंटर्स होते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपके स्टार्टअप के साथ में आपका मेंटर्स का होना भी बहुत जरूरी है. दैट इज नंबर 2. नंबर 3 इज बेसिकली bootstrapping with fellow entrepreneurs. Bootstrap किसे बोलते हैं? Any idea, guys? Bootstrap किसे? Bootstrapping वो होता है जिसे कहते हैं कि, No, sir. हाँ, bootstrapping मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, आपके लिए नया नया वर्ड लग रहा होगा. Bootstrapping बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इट इज लाइक when you talk about your products and services to each another, other entrepreneurs, other startups. तो होता क्या है, जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप सेल है ये, राइट? इस कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, तो आप लोगों का प्रोग्राम होना चाहिए. आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग द प्रोग्राम्स और नॉट. तो आपका एक प्रोग्राम होता है जहां पे सब लोग इकट्ठा आके यू टॉक टू ईच अदर. यस और नो? या? सो व्हेन यू टॉक टू ईच अदर यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. आपको आइडियाज मिलते हैं, आपको चैलेंजेस का सोल्यूशन मिलता है. सपोज हर्षद हैज एनी प्रॉब्लम कि सर मेरा मार्केट नहीं हो रहा है प्रॉपर, लेकिन ऋषभ हैज हिज आइडिया ऑन इट. ऋषभ बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ में ये बढ़िया चल रहा है, आप इसको करके देखो, राइट? सो बूटस्ट्रैपिंग हेल्प्स. ये जो एक दूसरे से आप बात करते हो, चैलेंजेस के बारे में बात करते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हो, कैसे इस चीज को किया आपने उसके बारे में बात करते हो, तो इससे क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट में या आपके स्टार्टअप में हेल्प होती है. सो हमेशा ट्राई करिए, एंटरप्रेन्योर्स इज ऑल अबाउट दैट. बिजनेसमैन को आइडिया नहीं देगा ना, ही उससे बात करेगा ना उसको ट्रिक्स बताएगा क्या? बट एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को आइडिया भी देगा, उसको हेल्प भी करेगा, उसकी मदद भी करेगा, उसको बूस्टअप भी करेगा. हम कहते हैं ना कि लीडर्स ऑलवेज मेक लीडर्स. एक अच्छा लीडर की पहचान है कि वो और भी लीडर्स को बनाता है, राइट? पर एक लीडर वो लीडर नहीं कहलाता जो सिर्फ हमेशा अपनी बात करे, राइट? सो वैसे ही एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को हेल्प करेगा अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, कहीं भी नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देगा, बोलेगा नहीं, राइट? क्योंकि उनका मकसद है बिजनेस करना, धंधा करना, पैसे कमाना. वो क्यों आप आइडिया देगा? बट एक एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से जब बात करते हैं यू गेट अ सोल्यूशन टू इट. गॉट इट? ये आ गया आपका तीसरा चीज. बूटस्ट्रैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द अदर थिंग इज दैट you need to have somebody who is talking about legal aspects. उसको आपको एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प कर देगा. आपका जो, अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प कैसे होता है? अब लीगल हेल्प का ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ बदमाशी किया तभी आपको हेल्प चाहिए. लीगल हेल्प का मतलब होता है आप कुछ भी बिजनेस करते हो,
उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हैं, किस में आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रोप्राइटरी करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, प्रोप्राइटरी, प्राइवेट, लिमिटेड, और कौन सी कंपनी सेटल करना है, व्हाट आर द डिफरेंट लाइसेंस नीडेड, ठीक है, कौन कौन से महीने में क्या क्या कंप्लायंसेस है, हु विल टेल यू? देयर इज अ सीए एंड द लीगल डिपार्टमेंट, राइट? इसमें भी आपकी मदद करेगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप सेल टू हायर अ लीगल, उनके भी अपने होते हैं जो आप लोगों की हेल्प होगी। ये हो गया 4 चीजें। 5वां होता है नॉर्मली बेसिकली, हमेशा कोशिश कीजिए कि सिर्फ बात नहीं करना होगा, आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाना है, राइट? फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि यू हैव द आइडियोलॉजी टू मेक इट काउंट। आप सिर्फ बातें बनाओगे लेकिन करोगे नहीं काम, ऐसे कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। नहीं सर। 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाएंगे लेकिन आपका कुछ काम नहीं होगा, आप सिर्फ बातें बनाओगे, राइट? सो बेटर है बातें कम बनाओ, काम करके उसको एक प्रोडक्ट बनाओ, या सर्विसेज को एक बार कोशिश करो बेचने की। क्योंकि जब आप चीजों को बेच पाते हो या किसी को अच्छा लगता है कि अरे बहुत अच्छा आइडिया है, इसको जब भी तू सक्सेस में ले जाएगा, जस्ट लेट मी नो, मैं आपके प्रोडक्ट को लूंगा, राइट? यानी आपके प्रॉब्लम मेरे को आपने सॉर्ट आउट किया, आई लाइक यू। सो ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज ऑन दोस एस्पेक्ट, मेक अबाउट द थिंक अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इज नीडेड, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट? कौन सी स्ट्रेटेजीज काम आती है, तो बूटस्ट्रैपिंग इज वेरी नीडेड। उसके अलावा आप कोशिश करिए 4 लोगों को कन्विंस करने के लिए, बेसिकली दे इफ यू सी वेदर यू आर वर्थ और नॉट। अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर में कोई प्रॉब्लम है। बंदे को लगना चाहिए यार हर्षद ने ये चीज बनाया, मेरे को मजा आ गया, हर्षद मैं तो ये चीज पक्का लूंगा, तो हर्षद खुश हो गया, राइट? अगर आपके साइड वाला बंदा या आपका नेबर या आपके घर वाले कोई अगर आपका एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में जान है, दम है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द फंडिंग। फंडिंग इज अ प्रोसेस। आपका फंडिंग, मार्केट में ऐसे लोगों की फंडिंग बहुत जरूरी, बहुत रखी हुई है, पहले नहीं थी, पहले कम थी, अब में बहुत सारे पैनल्स हैं। फंडिंग के लिए भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करेगा कि व्हाट इज द राइट वे, किससे मिलवाना है, कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है, अगर आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस में दम है, आपको ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। आप लोग देखते हो ना, ये शार्क टैंक देखते हो ना, या Yes sir. Yes. शार्क टैंक देख के या डिमोटिवेट होते हो? कोई लोग डिमोटिवेट कुछ होता नया है यहाँ पे? आइडिया मिलता सॉरी? है सर, वो नया आइडिया मिलता है देख के उनका अलग अलग एग्जैक्टली इससे। exactly. अभी देखो शार्क टैंक से 2-3 चीजें बहुत फायदे हो रही है। पहला चीज, अब शार्क टैंक तो इज अ बिजनेस बेसिकली, ठीक है? वहां पे जाना सब लोगों के बस का है नहीं, उसके लिए बहुत सारा लॉबिंग है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट डेफिनेटली लोग जाते हैं, राइट? पर शार्क टैंक आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, यानी आप क्या बोलेंगे तो वो आदमी पकड़ लेगा। क्यों आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे? आप देखते हैं ना, बहुत लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। यू आर गेटिंग नॉलेजेबल अबाउट एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन ड्यूरिंग द फंडिंग प्रोसेस। आपको आइडिया मिल रहा है ना कि आपके आइडिया में दम नहीं है, ऐसा मार्केट में सस्टेन नहीं करता, आपको इन्वेस्टर कैसे बात करेगा, क्या क्या पूछता है इन्वेस्टर, नाउ यू आर गेटिंग एन आइडिया। तो शार्क टैंक से आपको फायदा हो रहा है या नहीं? Yes sir. सो दैट इज वाई व्हाट इज आई सेइंग कि देखिए आपको पर्सनली फायदा नहीं हो रहा है कि वहां पे पैसा तो कोई और पा रहा है, नॉलेज कोई और ले रहा है, फंडिंग किसी और कर रहा है, मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? नहीं, आप इसलिए खुश हो रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग आइडिया हाउ द इन्वेस्टर स्पीक्स, क्या देखता है आप में, आप कैसे अच्छे से बोलते हो या नहीं बोलते हो, राइट? सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि अब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इन्वेस्टर को मजा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए ना? रोहन गुप्ता, ऑडियो से मजा आना चाहिए। Yes sir, आना चाहिए। वेरी नाइस, नाइस टू सी यू गाइस, नाइस टू सी यू वरना गाइस। बोर हो जाएंगे। हैं? ऑब्वियसली बोर हो जाएंगे। मेरे साथ में ही कई मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको पहले दिन भी बोला था, कई साल तक वैसे ही खाली बैठे रहे,
मतलब प्रोडक्ट को लेके बैठे हुए हैं, सर्विस को लेके बैठे हैं, नॉट एबल टू मार्केट इट प्रॉपरली। हमेशा जस्टिफाई करते हैं, अरे नहीं मेरे साथ में ये हो गया, फिर कोरोना आ गया। अरे यार कोरोना तो आ गया, लेकिन कोरोना के आने के बाद में भी कोई लोगों ने धंधा बिजनेस कर लिया, स्टार्टअप्स चला लिया, है या नहीं? यस। Yes. सो देयर इज अ कॉमन थिंग। अगर आप जस्टिफाई करोगे कि हाँ मेरा फेलियर ऐसा तो बनता था, तो यू आर नॉट एबल टू सक्सीड। फेलियर से सीखो, लोगों से मिलो, अपने आइडिया को पुश करो, मम्मी पापा को मोटिवेट करो, मम्मी पापा को भी लगना चाहिए कि हाँ दम है, राइट? So people will only help you when you are able to say it in a proper manner. If you demand for it. अब आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना, मेरे को तो सपने आएंगे नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है। So always remember, whenever you have any question, reach out to your entrepreneur cell, reach out to your mentors, reach out to your teachers, reach out to other people whom you think they might help. कई बार होता है टेक्नोलॉजी। यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, राइट? सपोज आपने कोई सर्विस बनाई है, उसमें रोल 2-3 है। मार्केटिंग कौन देखेगा? तो एक टीम चाहिए होता है नॉर्मली। टीम का मतलब मार्केटिंग के लिए ये बंदा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये बंदा है, आईटी वाला बंदा है। सो हर बंदा अलग अलग ही होता है, राइट? वन मैन आर्मी कहीं पे काम करता नहीं है नॉर्मली, राइट? सो फंडिंग भी जब होती है, मिनिमम 2 पार्टनर्स देखा जाता है। समझ में आ गया? वो वन मैन आर्मी कहीं चलता नहीं है। वो रियल लाइफ में वो फटा पोस्टर हीरो निकला हीरो वाला सीन होता है, वो सिर्फ मूवीज में, फिल्मों में होता है, राइट? सो यहाँ पे आपको एक बड़ा स्ट्रांग टीम चाहिए। आपने, आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको लेके चल सकते हैं नेक्स्ट, राइट? एनीवेज, दिस इज ऑल दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड रिमेंबर एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिस इंसान में हिम्मत होती है उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है, राइट? सो Yes, अगर sir. आपके अंदर में, तो आपके अंदर में अगर हिम्मत है, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छा है। आपके लिए सारे लोग मदद करेंगे, बिकॉज आपके अंदर दम है, आपके अंदर हिम्मत है। और एक बहुत बड़ा फील्ड है, हजारों में लोग अब आजकल एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज दैट माइंडसेट। पैसे नहीं कमाना है, पैसे भी कमाना है, इज्जत भी कमानी है, लोगों के, पब्लिक के सामने एक लीडर के हिसाब से आप आना है, एक बड़ा प्रोडक्ट को लेके आना है। सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है। ये एक ही आदमी कर सकता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बाय सेइंग दिस, आई डू नॉट मीन दैट कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग खराब है या गलत है, नहीं। आज एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक बहुत, जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आपके अंदर में पैशन है, राइट? So that's all from me, but I am ready for taking up couple of questions, because देखिए बात करेंगे तो हम 8 घंटा भी बात कर सकते हैं। There's so much things I can share you, but with the limitation of time, I will take up couple of questions, and please, Ovesh or somebody, you can just, Amir Pathan, anybody can please take it forward. Yes, sir. Go ahead. Anybody has a question, please? सर, Yeah, Uzma. सर आपने कहे कि अगर जज्बा और हिम्मत होती है तो लोग भी आपकी मदद करते हैं, Definitely. राइट? बट Yes. सर रियलिटी तो हमने जितनी अब तक देखी है कि जोश हिम्मत देखने के बाद लोग आपको नीचे खींचते हैं, ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि आप, वो लोग चाहते ही नहीं है कि आप ऊपर जाओ। आप समझ रहे हैं ना? कोई नहीं चाहता है कि यस उसका सर। दोस्त ऊपर जाए। आप जब जाओगे ना तो उनके पास चॉइस नहीं रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट? आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपके जो दुश्मन भी है ना, वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। और जो दोस्त हैं आपके, वो पता है क्या बोलते हैं? आपके दोस्त बोलते हैं कि यार ये मेरे में से था, हमारे, मैं इसका दोस्त था, राइट? जब धोनी स्ट्रगल कर रहा था ना, धोनी धोनी जितना स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों के साथ में, सब उसको जानते थे, लेकिन ही वॉज स्ट्रगलिंग, उसका कोई नाम नहीं था। जिस दिन उसने नाम कमा लिया ना,
आप जाओ उसके आसपास में, जो लोग उसको कम जानते थे या कम उसके साथ में हाय हेलो ही होता था ना, वो भी बोलते हैं धोनी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ये है या नहीं? बिकॉज यस सर। धोनी के जैसे उनका भी नाम होता है ना कहीं, और एग्जैक्टली उनका अब काम आपसे भी समझ गए। बनता है। बिल्कुल। सो ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने अभी आपको सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि जब मैं इतने साल के नौकरी के बाद में 10-12 साल के बाद में जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट में थे करीबन 7-8 साल, 10 साल, और आज भी हैं। क्योंकि क्योंकि इसके बीच में मैंने कई सारे स्टार्टअप्स को खोले, फिर बंद कर दिए। कहीं पे मैं परेशान हो गया, बहुत बैकलैश हुआ, कहीं पे फंडिंग हुई, कोई किसी ने चीटिंग कर दिया, राइट। सो इसमें क्या होता है ना, आप सीखते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप is a journey, it is not a destination, right? Do you remember the change? Do you know the change? Your success is your journey, it is not a destination. अगर आप किसी चीज को डेस्टिनेशन बना देते हैं ना, वो डेस्टिनेशन अचीव करने के बाद आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको जर्नी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी डेस्टिनेशन को आप आगे बढ़कर जाते हैं। या गो अहेड, थैंक यू, होप दैट मोटिवेट्स यू। श्रेया, यू हैव समथिंग टू से? श्रेया, anybody else? Sir, Uzma, Ashish has the question he has put in chat box. okay, okay. He must have spoken about it anyways. Good morning. Ashish, sir, what are some key skills and qualities that are important for success in entrepreneurship? Believe in yourself and your product. Just two things. Believe in yourself and your product. Thank you, sir. आप इसका डीप मीनिंग समझ गए? 2 लाइनों में बोल दिया। अपने आप पे विश्वास करना कि मैं करके दिखा दूंगा, और दूसरा कि मैं जो चीज बनाया हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और बिलीफ होना चाहिए, होना भी चाहिए वैसे ही। Yes, हवाबाजी sir. मत, लाइफ में हवाबाजी मत करना। हवाबाजी करोगे एक दिन पकड़ में आ जाओगे। सर, आपने Thank you. लीगल और वो कुछ बताया था, वो एक बार वापस से बता सकते हैं? सी लीगल लीगल एस्पेक्ट्स, हमारे टाइम में क्या होता था ना, लीगल्स हम जानते नहीं थे, हम फंस जाते थे पहले। क्योंकि हमको जो बताता था सामने समझ में आता था, हमको लगता था वही सही बोल रहा है। तो मैं जब देखिए, जब अभी मैंने क्यों बोला कि आपको प्रोप्राइटरी फर्म करना चाहिए पहले, जस्ट टू सी वेदर यू आर डूइंग गुड और नॉट। अगर आपको लगता है कि प्रोप्राइटरशिप में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप जाते हैं, आप अगले स्टेप में फॉर द फंडिंग और बड़ा बनने के लिए आप जाते हैं कहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, राइट। अब जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे को किसी ने प्रोप्राइटरी नहीं बोला, मेरे को बोला कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना दो। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड बना तो दिया, अब ना धंधा हो रहा है, ना काम हो रहा है, ना समझ में आ रहा है, लेकिन उधर से गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हैं, मैं टैक्स भी भर रहा हूँ, मैं सेल्स टैक्स भी भर रहा हूँ, मेरे ऊपर जीएसटी भी लग रहा है। आप समझ रहे हैं? उसमें फिर सालाना कंप्लायंस है, सीए के अपने कंप्लायंसेस हैं। तो मैं पैसे अपने पॉकेट से निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन कमा कुछ नहीं रहा हूँ। प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि आप जब बिजनेस करते हैं ना, आपका गवर्नमेंट कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं है, उसका एक टैक्स ब्रैकेट के बाद में ही आएगा। आप जो भी छोटे मोटी चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं, राइट। तो वो आपके अपने पर्सनल कंप्लायंसेस होते हैं, तो उसमें अगर आप बढ़िया करते हैं तो आप उसमें प्राइवेट में जा सकते हैं। तो आज की डेट में लीगल इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई चीजों को करना हो, लीगल एस्पेक्ट जानना बहुत जरूरी है। उस डोमेन में क्या लाइसेंस है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस क्या है, क्या आपको मंथली में क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं। जब आप ये चीज को जान के जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ जाएगा आप फंस जाएंगे। फिर आपको उनका सुनना पड़ेगा जो लीगल में है, वो आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही इन एडवांस में जब भी आप कंपनी स्टार्ट करें या प्रोप्राइटरी स्टार्ट करें, आप लीगल के बारे में जानकारी ले लें कि इस बिजनेस में लीगल एस्पेक्ट क्या है, राइट। इसमें आपकी मदद आपका एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी करेगा और आपके मेंटर्स भी हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, वो आपको बता देंगे लीगल क्या होता है हर एक चीज में। मेक सेंस? या जैसे यस आप फूड सर। का जैसे आप फूड का यस बिजनेस सर। कर रहे हैं, तो आपका आपका फूड का क्वालिटी का है, आपका लोकल इश्यूज होते हैं,
FSI होता है, लाइसेंस होता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी डोमेन में क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या कंप्लायंसेस, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी मदद कर सकता है। आपकी जान पहचान में कोई अगर सीए हैं उनसे भी बातचीत करिए, बट प्लीज स्पीक टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हर लोगों से बात करिए, कोशिश करिए कि आप समझने की कोशिश करिए कि ये बिजनेस कैसे होता है, एंड इट इज फन। डोंट वरी, सिर दर्द मत बनाओ उसको, बिजनेस को कभी। Yes, sir. Sir, now we would like to end up this session with a vote of thanks. Can we go ahead with that, sir? प्लीज, थैंक यू सो मच। Shreya, go with it. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, one and all. I, Shreya Shedge, deem it a great honor and privilege propose the vote of thanks on this event on behalf of Vivek College of Commerce. I take this opportunity to propose a humble thanks to all those who have directly or indirectly contributed to our session, organized by Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. At the outset, I wish to express my deep sense of gratitude to our chief guest and keynote speaker, Mr. Zahid Akhtar sir, for accepting you. our invitation and giving up his valuable time. My heartfelt thanks to you, sir. We also thank our respectable principal, ma'am, Dr. Vijayta Shetty, ma'am, Dr. Anuja Narvankar, ma'am, for giving us this platform for conducting this event. Lastly, my heartfelt thanks to the team of Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship for making this event a great success. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you Thank so you so much, sir. much. Be blessed, everybody.